Breaking ground, and I'm Swati Joshi. Let me first take you through the top 5 stories we are focusing on here on this broadcast. Bollywood actor Nusrat Bharucha visits Mahakal temple in Ujjain to offer New Year darshan and prayers. Bareilly cleric calls it haram, demands repentance from Nusrat Bharucha. We'll also talk about Beijing's claim that it helped diffuse tensions between India and Pakistan, with Chinese Foreign Minister Wang Yi asserting that China played a mediating role during the clashes. Opposition hits out at Prime Minister Modi questions silence on Beijing's claim. We'll also talk about Samajwadi Party MP Sanatan Pandey, who has sparked a political row alleging Pulwama attack orchestrated by BJP and the Prime Minister to influence elections. Congress echoes the same, citing unanswered questions over the source of RDX. BJP rejects allegations, calls it a pattern by the Samajwadi Party to give terrorists a clean chit. Next, India surpasses Japan to become the world's 4th largest economy in nominal GDP terms. BJP takes a dig at the opposition, saying the dead economy lobby should read the data. Congress rejects year-end review, calling the data wrong and baseless. We'll also talk about another statement that has come in from a Congress leader. This time it's Udit Raj, who has urged an internal overhaul, calling for removal of non-performers, saying the Congress must introspect instead of blaming alliance partners. Let's move on and shift our focus to the debate on Nusrat Bharucha's visit to the temple. We're just hours away from welcoming 2026. The new year often marks visits to temples to seek blessings for the year ahead. Following this tradition, Bollywood actor Nusrat Bharucha visited the Mahakal temple in Ujjain to offer prayers. Nusrat Bharucha said this was her second visit to the Mahakal temple. She shared that she came to offer prayers and darshan for the new year, spoke about being surrounded by worshippers and expressed how she feels drawn to return to the temple every year. Listen in. जय श्री महाकाल। मैं दूसरी बार आई हूँ और ये न्यू ईयर का टाइम है और फिर भी दर्शन करने पहुंची हूँ और सबने बहुत ही प्यार से और बहुत ही संभाल के, नॉट जस्ट मुझे बट जितने भी भक्त आए आज, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम में इतनी भीड़ है, इतने लोग श्रद्धा से आते हैं, साल खत्म हो रहा है, नया साल शुरू करने जा रहे हैं और सब बस आशीर्वाद लेने आते हैं और उन्होंने इतने अच्छे से पूरी अरेंजमेंट की है, सबको लेके आए हैं, बहुत प्यार से सबका दर्शन हुआ है। मेरा मन करता है बस अब आती रहूं हर साल और जय महाकाल। However, the visit has drawn criticism from Shahabuddin Razvi, a cleric from Bareilly, who described the act as un-Islamic and termed it haram. He stated that such actions are not permitted in Islam and added that Nusrat Bharucha should repent by reciting Istighfar and the Kalima, claiming that she has committed a major sin. So that's the reaction that has came in from the cleric. He says Islam does not permit these acts. Attack number 2 on the actress. Nusrat Bharucha should repent as per the cleric. Number 3, she should recite Istighfar and Kalma. Number 4, her acts are against Islam's principles. Number 5, Nusrat Bharucha has committed a major sin as per Shahabuddin Razvi. महाकाल मंदिर उज्जैन में नुसरत भरूचा ने जाकर के दर्शन किए, जल चढ़ाया और वहां मजहबी परंपराओं को निभाया। इन तमाम चीजों की इस्लाम इजाजत नहीं देता है। उन पर शरीयत हुक्म लगाती है कि वो नुसरत भरूचा तौबा करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें और कलमा पढ़ें। उन्होंने इस्लाम के उसूलों के खिलाफ काम किया है, इसलिए वो शरीयत की गिरफ्त में आ गई हैं और वो सख्त गुनाह अजीम के शिकार हैं। उनको तौबा करना जरूरी है। Let's open this up. Let's go across to the guests who are joining us on the broadcast. We have Dr. Fahim Baig, social activist, and Ambar Zaidi, also an activist. Good evening to both of you. Ambar Zaidi, we are looking forward to welcoming 2026, but the mindset remains the same. Now, the cleric from Bareilly, Shahabuddin Razvi, says कि तौबा करनी होगी नुसरत भरूचा को. Yeah, absolutely. And first and foremost, Swati, I want to wish every citizen of the country a very happy new year. And then I want to come back to the debate and move on to the topic. And this Maulana Shahabuddin Rizvi,
He's infamous for issuing nonsensical fatwas every other day. He issues a video and he, creates an opinion of himself and issue a video every other day, and he's known for that. But India is a constitutional democracy, and we all know that, not a theocracy. Every Indian citizen has the fundamental right to freedom of conscience and belief under Article 25 that everybody knows. But visiting a place of worship and place of any worship, be it mandir, masjid, dargah, and we see, so many non-Muslims or so many Hindus visiting the dargah, be it, Mumbai dargah and some dargah in Rajasthan. It's their personal choice, not a criminal or constitutional violation. No religious authority has the legal power to police an individual or, on their personal spiritual journey. Faith by itself nature is an internal and personal choice, and publicly declaring someone as sinner or something and asking for istighfar, being in a democratic setup, it's not rightful to do that. I think they should limit to their own job. There's no concept of Maulana or any mediator between Allah and a follower of Allah. If Allah knows what I believe and where I'm going and how I'm going and what is my belief, that's if we go as per Islam or as per Constitution, that is my personal belief or choice. Okay, personal choice. Absolutely. Okay. Let me bring in Dr. Fahim Baig. It's a personal choice. It's between an individual and their God. देखिए, सबसे पहले तो मैं वैलिडेट नहीं करना चाहूंगा शहाबुद्दीन साहब को जो फतवा वगैरह जो उन्होंने दिया है, मगर जो बात है वो बात सच है। आप एज एन एंकर आप यहाँ टाइम्स नाउ पर जो है अपना प्रोग्राम यहाँ पर आप कर रहे हैं, तो ये एक छोटी सी बात है कि आप अगर किसी एजेंसी से जुड़े हुए हैं या आप किसी रिलीजन से जुड़े हुए हैं तो आप उसके ही रिचुअल्स फॉलो करेंगे। मंदिर जाना, मजार जाना अलग बात है, जाना अलग बात है, मगर रिचुअल्स को फॉलो करना ये जो दिखाता है कि आपने अभी तक क्लेरिफाई नहीं किया है कि आप कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं। और रही बात उनकी पर्सनल लाइफ की, तो जैसा कि मैंने उनके बारे में देखा तो उनकी शादी अमन वर्मा साहब से शायद 2024 में कहीं हुई है। तो अब ये नुसरत भरूचा को बॉलीवुड एक्टर की बात हो रही है। नुसरत भरूचा बॉलीवुड एक्ट्रेस जो है, जैसा मेरी जानकारी है, नहीं नुसरत भरूचा जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है उनकी बात हो रही है। आप किसी और नुसरत की बात कर रहे हैं। और यही मेरा अगला सवाल आपसे होने वाला था कि कोई पहली बार नहीं, कभी नुसरत जहां को टारगेट किया जाता है, जब शादी हुई थी तो सिंदूर लगा लिया था इसीलिए, फिर सारा अली खान को टारगेट किया गया, अब नुसरत भरूचा को टारगेट किया जा रहा है। तो ये अधिकार किसने दिया कि उनके खिलाफ इस तरह से फतवा? ये तो क्लेरिफाई करना होगा। पर वो दोनों जगह अगर जा रहे हैं, what I believe is my personal choice. Why need to declare or clarify what I believe or what I follow? रिचुअल्स को फॉलो करना अलग बात है, यानी ये दिखाता है कि आपने किसी और अपना लिया है, तो आप ये क्लैरिफाई कीजिए। नहीं, किसी की जरूरत नहीं, ये सब इन सब बातों का ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक ये है कि अगर आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या मजार पे जा रहे हैं तो वहां जाना अलग बात है, उनके रिचुअल्स को फॉलो करना ये दर्शाता है अगर वो हर जगह जा रही है, उनकी श्रद्धा अगर वो हर जगह जा रही है, उनकी श्रद्धा अगर हर किसी में, वो कभी इबादत करती हैं तो कभी पूजा करती हैं, उनकी श्रद्धा हर जगह अगर है, तो इससे किसी को क्या दिक्कत? हर चैनल पे आप हर चैनल पे जाके एंकरिंग नहीं कर सकती हैं, आपके कुछ रूल्स हैं, कुछ आप प्रोफेशन को रिलीजन से, आप प्रोफेशन को किसी के पर्सनल चॉइस और रिलीजियस फ्रीडम से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? धर्म में आपको बिल्कुल कर सकते हैं, जब एक छोटी सी कंपनी आपको इजाजत नहीं दे रही है, आप किसी भी चैनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है शो करने लगेंगे। आपके हिसाब से ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसा सिंपल, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अलग बात है, किसी स्टेज पे जाना अलग बात है, मगर जगह जाकर अपनी बात रखते हैं ना, वहाँ के रिचुअल्स फॉलो करना अलग बात है। अंबर जैदी नहीं, प्रोफेशन और रिलीजियस चॉइसेस एक ही बराबर है डॉक्टर बेग के हिसाब से। चाह रहा हूँ जब आप किसी से कमिटेड हैं तो आप they don't understand and see they're giving two different examples. We as an individual or as an opinion maker or something, we go to different channels, we express our opinion. You are an anchor, you are working for an organization, we are free to express our opinion. नहीं है कि आप एक ही धर्म में express our opinion on the platform. नहीं, एक तरफ आप बोल रहे हैं, please don't interrupt. नहीं, एक सेकंड, one second, प्लीज एक सेकंड, ऑडियंस व्यूअर्स को समझ नहीं आएगा कि कौन क्या कह रहा है। डॉक्टर बेग, आप एक तरफ कह रहे हैं कोई दबिश नहीं है, दूसरी तरफ आप एक प्रोफेशन से उसका कंपैरिजन कर रहे हैं
कि अगर मैं यहाँ एंकर करती हूँ तो बाकी जगह एंकर नहीं कर सकती हूँ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात होती है क्या इसमें भी? भगवान में विश्वास में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है क्या? तोड़ मरोड़ नहीं सकते। मैंने जाने को मना नहीं किया, वहां के रिचुअल्स को फॉलो करने को। नहीं, पर ये मना करने वाले या इजाजत देने वाले लोग कौन होते हैं? That's what Amber Zaidi is asking. you to decide and Who are you to allow or not allow? आप जिस धर्म में हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी जामा मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लेंगे क्या? नहीं, नरेंद्र मोदी जी एक तो नरेंद्र मोदी जी इसमें कहां से आ गए? दूसरी बात एक बात बताइए, रिलीजियस चॉइस अगेन नुसरत भरूचा का एक पर्सनल चॉइस है। कल के दिन अगर नरेंद्र मोदी जी का पर्सनल चॉइस है कहीं जाने का तो वो जा सकते हैं। अमित शाह जाकर, अरे वो उनका पर्सनल चॉइस होगा ना, उसका जवाब मैं कैसे दूं? क्या फतेहपुरी जामा मस्जिद पर अरे सर वो उनका पर्सनल चॉइस, उसका जवाब मैं कैसे दूं? ये वही बात हो गई। मैं कौन होती हूँ उनको बोलने वाली कि आप जाइए या मत जाइए? आप पढ़ सकती है, चलिए आप ही आइए। आप कौन होते हैं या आप कौन होते हैं बोलने वाले? आप बताइए। या और दूसरी बात अभी वो चर्च में गए थे क्रिसमस के दौरान नरेंद्र मोदी जी चर्च में गए थे, हमारे प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ कोई फतवा जारी नहीं हुआ। मैं मस्जिद की बात कर रहा हूँ, आपने यहाँ मस्जिद पर सवाल उठाया है, मंदिरों धर्म की बात हो रही है। नहीं, आप इसको देखिए। नहीं, मैं तो धर्म के हिसाब से देख रही हूँ ना, बिकॉज आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की। आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की। नमाज पढ़ने की बात हो रही है। अंबर जैदी नहीं, नमाज पढ़ने की, मैं अपने धर्म की बात कर सकता हूँ, उसके बारे में मुझे। अच्छा, अब अंबर जैदी को आने दीजिए प्लीज, अलाउ हर टू स्पीक। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप एक बताइए, नुसरत भरूचा मंदिर गई, तारा अली खान मंदिर जाती है। इनफैक्ट मैं भी, स्वाति, आई हैव बीन टू महाकाल उज्जैन, इट्स बीन 2 years, आई हैव बीन देयर। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर क्या कोई भी मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, हम लोग सभी भारत में एक दूसरे प्लेसेस ऑफ वर्शिप जाते हैं, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी हर तीसरे दिन आकर पता नहीं कहां से मुद्दे खोदकर फतवा कैसे निकाल देते हैं। स्वाति, आई वांट टू टेल टू आवर व्यूअर्स, मैंने उनको वैलिडेट नहीं किया, मैंने पहले सिरे से खारिज किया है कि उनकी क्या हैसियत है, वो फतवा। इफ नोबडी इज आस्किंग फॉर fatwa is an opinion. अंबर जी, an opinion when we ask for. मैडम, how you सबसे पहले शहाबुद्दीन साहब को मैंने वैलिडेट ही नहीं किया। मैंने सबसे पहला अपना जो, आप ये बताइए, मौलाना वही कहा, सबसे पहले शहाबुद्दीन साहब को मैंने वैलिडेट नहीं किया कि वो ऑथराइज्ड है या नहीं है, किसी को पब्लिकली शेम करना आपको नहीं लगता? और दूसरी बात, यहाँ भारत में, और दूसरी बात भारत में ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये चॉइस रखना कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ पर आपकी श्रद्धा है, कौन सा रिलीजन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और किस मंदिर, किस मस्जिद, किस चर्च, किस गुरुद्वारे में जाकर के आप माथा टेकना चाहते हैं, वो चॉइस, वो फ्रीडम इस देश के संविधान ने दी है। तो अगर आप राइट्स की बात कर रहे हैं, फ्रीडम और चॉइसेस की बात कर रहे हैं, तो दैट इंडिविजुअल हैज दोस राइट्स एंड फ्रीडम एंड चॉइसेस। तिलक लगा रहा था, एक छोटा सा बच्चा अयोध्या में लोगों को तिलक लगा रहा था, तो वहां के कुछ फंडामेंटलिस्ट हिंदुओं ने उस बच्चे को इतना मारा और उसको इतना क्रिटिसाइज किया, उसकी वीडियो बनाई। आप बात कर रही हैं नमाज पढ़ने की, मंदिर में पूजा करने की, गलत है। टीका अगर मुस्लिम किसी के साथ भी जबरदस्ती और वायलेंस नहीं होना चाहिए। कहाँ डिबेट किया किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। ये जबरदस्ती और ये वायलेंस किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर बेग, आप ऐसे और 10 एग्जाम्पल भी ले आएंगे, आप ऐसे और 10 एग्जाम्पल भी ले आएंगे, तब भी मेरा स्टैंड वही रहेगा, नहीं बदलेगा। तब भी मेरा, आप नरेंद्र मोदी तक चले गए, आप अमित शाह तक चले गए, आपने उस छोटे बच्चे का भी जिक्र कर लिया, मेरा स्टैंड नहीं बदल रहा है जी, स्टैंड बदल ही नहीं रहा है मेरा। मेरा स्टैंड क्यों बदले? हर किसी को आजादी है। उस बच्चे के साथ जो हुआ वो गलत हुआ उसके साथ, गलत हुआ। जहां वायलेंस हो जाता है वो गलत है, जहां वायलेंस हो जाता है वो गलत है। अंबर जैदी, बिफोर आई रैप अप, डिबेट क्यों नहीं होती? डॉक्टर बेग, आपने उठाया वो मुद्दा, आपको उस पर जवाब चाहिए था, जवाब मिल रहा है। अंबर जैदी, किसी ने रोका भी नहीं ना आपको उस मुद्दे को उठाने से। उस पर डिबेट क्यों नहीं होती? अंबर जैदी, बिफोर आई रैप अप, See, Swati, I want to say that they will oppose everything what you say. They don't have any opinion. They don't have any standard or something that that we have these principles. Opinion है, जाना मना नहीं। डॉक्टर बेग, ये गलत बात है। आप सामने वाले को बोलने नहीं दे रहे, हर बात में आप इंटरप्ट कर रहे हैं, ये गलत बात है। From the very beginning, you are interrupting and you are not allowing me to complete my point. Religious leaders
are free to interpret their faith for their followers, but they do not. They should not be speaking for anybody in particular and go against the law. कि वो इस्लाम के दायरे में आती हैं, गिरफ्त में हैं, and all that. This is totally against the constitution. And any such diktat or fatwa has never stopped people from expressing their and exercising their free will, their right and their personal choices. Going against Islam, and it is a big disservice to the All right. Muslim community. All right, Dr. Beg and Amber Zadi, that's all the time I have for the debate. Thank you very much for joining us.